Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 13, that is a kinetic theory of gas. And today, mostly we are going to complete the numerical of this chapter. So before starting that, let me introduce the equations of this chapter. So the basic equation of this chapter is obviously a ideal gas state equation, right? So anybody remember the state equation? कोई बताएगा what was the state equation? PV is PV is equal equal to new RT. PV equals to Very good. So that state equation is, as you know, that was the PV is equals to mu RT. Very good. So state equation was PV equals to mu RT. Then after we had discussed its different form, if you remember. So its different form, याद आ रहा है कुछ? yes sir. PV is equals to बड़ा निकल. So its different form. Number one, PV is equals to small and capital N kBT, where kB was a Boltzmann constant, and that was obtained by taking the ratio of gas constants to the Avogadro number, if you remember. ठीक है? Yes sir. Apart from that, we had also discussed P equals to छोटा निकेत. याद आ रहा है? Yes Yes, sir. sir. And the third equation was P equals Rho to, rho RT by M naught. very good, RT rho by M naught, where M naught is it's a molar weight, Molar mass. molar mass, we can say. ठीक है? Yes sir. चलो उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डिराइव किया था, and the formula is pressure exerted by gas on a wall of container. याद आ रहा है कुछ? What was that formula? Yeah. P is equal to 1 by 3 rho average velocity square. Very good. कौन बोला? कौन बोला? एक प्रजापति. वेरी गुड. तो ये फॉर्मूला था. अब एक थ्योरी जो है ना, मैं पूरी रिवाइज करा रहा हूं बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है. तो एक थ्योरी शायद एक आध बैच में हुआ है, शायद नहीं हुआ, पता नहीं मुझे. तो क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन linear kinetic energy of a gas and temperature. This question can also be asked in this manner. The question is derive formula for linear average linear kinetic energy. Formula for average linear kinetic energy of a whole gas and average linear kinetic energy of one molecule of gas. देखो यहाँ पे दो चीज करना है, एक मोलेक्यूल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और पूरे गैस का फाइंड करना है. बट हम जहां पे अटके थे वहां से हम स्टार्ट करेंगे. सो एज वी नो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर. द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर was 1 by 3 density rho average v square, right? That was the formula.
Yes, sir. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय वॉल्यूम, दोनों साइड मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाइंग विद द वॉल्यूम v बोथ द साइड। ओके, तो फ्रेंड्स ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? मास। तो Mass. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो होता है भैया मास होता है। तो इसका मतलब 1/3 कैपिटल एम, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द होल गैस, इज इक्वल्स टू, कैन आई से पीवी। चलो ठीक है, इज इट अंडरस्टूड अप टिल नाउ? Yes, sir. यस सर। ये राइट साइड का जो टर्म था वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एंड डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। ओके ठीक है। Yes, sir. तो फ्रेंड्स तो फिर ये एम वी स्क्वायर क्या होगा? तो बोले 3 PV होगा। बट हमारा जो टारगेट है वो क्या है भैया? तो बोले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक का, एनर्जी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? हाफ Half एम वी and स्क्वायर। square. तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड विद द हाफ, तो क्या ये हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड 3/2 PV हो जाएगा। Yes, sir. बट हमको यस। पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? Mu RT. म्यू आर टी। म्यू आर टी। वेरी गुड, हमको पता है कि पीवी इक्वल्स टू तो म्यू आर टी होता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो क्या है? तो बोले वो पूरे गैस का, देखो ये जो एम है ना वो पूरे गैस का मास है, मतलब पूरा गैस आ गया उसमें। तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल गैस, एंड दैट इज कम्स आउट टू बी अ 3/2 पीवी के बदले हम लिख सकते हैं म्यू आर टी। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला हमें मिला अभी, ये वाला फॉर्मूला, तो वो किसके लिए मिला भैया? तो ये फॉर्मूला किसका मिला भैया? काइनेटिक Average एनर्जी। length. सो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मोर प्रिसाइजली आई शुड से दिस इज एवरेज। ये हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है ना वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है वो कौन सा है? तो बोले वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर की जो हम बात कर रहे हैं वो लीनियर है, ज्यादा अगर प्रिसाइजली बोलना हो तो दिस इज एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? ऑफ द होल गैस। चलो, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहां तक समझ में आया? यस सर। अब चलो एक काम तो हो गया, मैंने पूरे गैस का तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर दिया। अब मुझे क्या करना है भैया? 1 मोल गैस करंट। नहीं, 1 मोलेक्यूल का फाइंड करना है। 1 मोलेक्यूल का फाइंड करना है। ओके, तो अब एक काम कर सकते हैं, देखो जो फॉर्मूला है ना वही वापस से लिखते हैं, बट इन प्लेस ऑफ अ कैपिटल एम कैन आई से n into m, where a small m where a small m is a mass of 1 मोलेक्यूल। तो सोचो अगर एक मोलेक्यूल का मास स्मॉल m है एंड टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कैपिटल n है, तो एक का मास इनटू कैपिटल n, मतलब पूरे सारे, मतलब जितने भी मोलेक्यूल्स है गैस के अंदर वो पूरा का मास ऐड हो गया। तो वो क्या मिलेगा? तो भैया पूरे गैस का मास मिलेगा ऑब्वियसली। Small m is the mass of 1 molecule, and this kind of n number of molecules are there inside the gas. तो nm क्या, हम n into m करेंगे ना तो वो पूरे सारे मोलिक्यूल्स का मास मिल जाएगा, मतलब पूरे गैस का मास मिल जाएगा। तो अपार्ट, तो दैट्स व्हाई आई कैन से द टोटल मास ऑफ द गैस कैन बी रिटन एज nm। चलेगा? ठीक है। यस सर। Yes, एंड sir. दैट इज इक्वल्स टू 3/2। अब म्यू आर टी के बदले वापस से पीवी लिख सकते हैं, एंड पीवी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? याद करो वो दूसरा फॉर्म जो स्टेट इक्वेशन का था, वो पीवी के बदले क्या लिख सकते हैं? एन के बी टी। N kBT. एन के बी टी। वेरी गुड। सना,
सना, Yes, sir. कुछ कहना है? No, sir. वो यहाँ पे आपका दिख रहा है नाम? ओके, सो वही फॉर्मूला मैंने वापस से लिखा। कैपिटल एम के बदले मैंने लिखा एन एम, एंड म्यू आर टी के बदले लिखा पीवी, पीवी के बदले एन के बी टी। अब पूरे इक्वेशन को एन से डिवाइड करते हैं, तो अगर पूरे इक्वेशन को एन से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब भैया सोचो कि ये हाफ एम वी स्क्वायर में ये जो एम है ना, वो तो एक मोलेक्यूल का मास है, तो फिर ये जो फॉर्मूला मिला वो मुझे किसका मिलेगा भैया? भैया 1 मॉलिक्यूल का। हाँ, तो ये स्मॉल m इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल, दैट इज इंडिकेटिंग दैट कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक मोलिक्यूल का लीनियर का, दिस इज द एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या लिखूं मैं, वन One मोलिक्यूल। molecule. ठीक है, आया बात समझ में? सर Yes, sir. देखो अब सर मैं, हाँ बोलो बोलो सर बोलो। ये लास्ट लाइन में थोड़ा लैग हो रहा था, क्या रिपीट कर सकते हो? हाँ, देखो ये जो फॉर्मूला नंबर 1 जो है ना, वो पूरे गैस का है, द होल गैस। एंड जो फॉर्मूला नंबर 2 है उसमें क्या आ रहा है कि हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर है। अब द स्मॉल एम इज द मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल, तो फिर ये हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मोलिक्यूल molecule. ओनली। तो अब भैया आपको देखना है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, कि आपको पूरे गैस का पूछा है या एक मोलिक्यूल का पूछा है। अगर पूरे गैस का पूछा है तो आपको क्या लिखना है फॉर्मूला? 3/2 म्यू आर टी लिखना है, राइट। और अगर एक मोलिक्यूल का पूछा है तो आपको क्या लिखना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? 3/2 केबीटी लिखना है। हाँ, पूरे गैस के लिए फॉर्मूला है 3/2 म्यू आर टी, एक मोलिक्यूल के लिए है 3/2 केबीटी। यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हो कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देखो 3/2 केबी तो कांस्टेंट है, ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर 3/2 केबी तो कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि that is directly proportional to temperature. One more thing, it is independent of, क्या लिखना चाहिए मुझे? It is independent of type of gas. वो गैस कौन से टाइप का है वो उसके ऊपर भी मायने नहीं रखता। मतलब मान लो कि आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ऐसे 3 अलग अलग गैस है। हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट सबका टेम्परेचर सेम है, तो उसके एक मोलेक्यूल का काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास अलग अलग गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। अगर टेम्परेचर सेम है तो चाहे हाइड्रोजन गैस हो या चाहे हीलियम गैस हो या चाहे ऑक्सीजन गैस हो, उसके एक मोलेक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगा। It is independent of the type of, हाँ, it is independent of the type of the gas. Is that clear, friends? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। The name of the topic is रूट मीन स्क्वायर। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है,
RMS। तो आपको क्या करना है, मान लो कि अगर आपको गैस के वेलोसिटी का RMS निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका रूट करना पड़ेगा और उसके बाद उसका मीन निकालना पड़ेगा। पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका रूट निकालना पड़ेगा, फिर उसका मीन करना पड़ेगा, मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब इट इज रूट ऑफ mean of a square of any quantity. Root of mean of square of any quantity is defined as the RMS value of that quantity. तो एवरेज वैल्यू का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर का एवरेज निकालो पहले और फिर उसका रूट निकालो तो आपको वो RMS वैल्यू मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? इज इट ओके? Yes. चलो, तो अभी क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, derive formula of RMS velocity of gas in the terms of number 1 pressure, number 2 mass of molecule of gas, that is a small m, and number 3 a molar mass m naught of a gas। चलो, ये क्वेश्चन है। तो मुझे भैया क्या करना है, बोले RMS वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले नंबर 1, फ्रेंड्स, डू यू नो प्रेशर, द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो एवरेज V स्क्वायर। यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. सो एवरेज V स्क्वायर क्या हो Yes, जाएगा? sir. एवरेज V स्क्वायर विल 3p इक्वल by टू, rho. 3p by rho. वेरी गुड, 3p बाई रो हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर रूट निकाल दो दोनों साइड, तो ये तो रूट 3p बाई रो हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमको क्या मिल गया भैया? RMS value. तो ये हमको RMS वैल्यू मिल गया। तो एक प्रेशर के टर्म्स में गैस का RMS वैल्यू जो है वो रूट 3p बाई रो है, राइट? आया बात समझ में? Yes, sir. ओके। अब दूसरा वाला, एज वी नो एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोलेक्यूल, तो एक मोलेक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भैया? 3/2 kBT था। यस और नो? ओके फाइन, ये 2 निकाल देते हैं हम, तो एवरेज V स्क्वायर को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना देते हैं। तो कैन आई से इट इज अ 3/2 kBT बाई स्मॉल m। Yes, sir. बट RMS वैल्यू तो क्या है, तो बोले रूट ऑफ मीन ऑफ अ स्क्वायर, मतलब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमको RMS मिल जाएगा। तो रूट 3 kBT बाई स्मॉल m। Is that clear, friends? So this is the another formula that we want to find, and this is the formula in the terms of mass of one molecule small m। आप देख सकते हो कि RMS वैल्यू जो होता है ना, देखो काइनेटिक एनर्जी जो था वो टाइप ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, बट RMS जो है वो टाइप ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज उसमें मास ऑफ द गैस मोलिक्यूल आ रहा है। अलग अलग गैस मोलिक्यूल का मास अलग अलग होता है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि टाइप ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? RMS। बट काइनेटिक एनर्जी जो था मोलिक्यूल का वो टाइप ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेंट
नहीं था। नहीं था। चलो वन मोर। चलो याद करो फ्रेंड्स, टोटल एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल गैस क्या था भैया? याद आ रहा है कुछ? 3/2 न्यू RT। वेरी गुड, अभी तो हमने डिस्कस किया, दैट वाज अ 3/2 म्यू आर टी। एम आई राइट फ्रेंड्स? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो कैन आई राइट फ्रेंड्स, म्यू जो है ना उसको कैन आई राइट m by m नॉट आर टी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो अब है ना वी स्क्वायर को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओ तो क्या बचेगा? 3RT. 3RT बचेगा, डिनोमिनेटर में नॉट। m I'm नॉट not. बनेगा। तो फाइनली वापस से एक बार वही करेंगे, क्या करेंगे भैया अभी? दोनों साइड Root निकालें। तो रूट करेंगे तो RMS मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका √3RT बाई m नॉट। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ द RMS वी आर ऑब्टेनिंग। ये तीनों फॉर्मूला वाकई में एक ही फॉर्मूला है, वो गैस मोलिक्यूल का RMS ही है, बट आपको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एप्लीकेशन करना है। जो पूछा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर प्रेशर दिया है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 3√3p/ρ। अगर आपको एक मोलिक्यूल का मास दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो √3kBT/m। एंड अगर आपको मोलिकुलर मास दिया हुआ है तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला √3RT/m0, वॉट एवर यू लाइक। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. तो फ्रेंड्स अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज के 1 to 9 आपके सिलेबस में है एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 एंड 8 ओनली। इलस्ट्रेशन 3 ही इलस्ट्रेशन आपके सिलेबस में है, एक्सरसाइज के 1 to 9 है। तो फ्रेंड्स वन बाय वन हम न्यूमेरिकल एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको मिल जाएगा, रात तक आपको ये नोट्स मिल जाएगा न्यूमेरिकल का। चलो 1 2 3 नहीं है, 4th न्यूमेरिकल है आपके कंटेंट पे। ओके, friends, are you able to see the question in your mobile screen? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. चलो क्या है? A vessel contains two non-reactive gases, neon and oxygen. The ratio of the pressure, दोनों के प्रेशर का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो P1/P2 इज इक्वल्स टू 3/2 दिया हुआ है। चलो अब क्या पूछा है? एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड द मास डेंसिटी ऑफ द नियॉन एंड ऑक्सीजन इन द वेसल। चलो मुझे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करना है। चलो मान लो कि ये जो नियॉन गैस है उसको हम नंबर 1 गैस बोलेंगे एंड ऑक्सीजन गैस जो है उसको मैं गैस नंबर 2 बोलूंगा, चलेगा? नियॉन जो है उसको 1 हम असाइन करेंगे एंड ऑक्सीजन जो है ना उसको 2 असाइन करेंगे, चलेगा? वैसे कर दिया है हमने, P1/P2 लिखा, इसका मतलब ही ऐसा हुआ कि मैंने नियॉन को 1 कर दिया है एंड ऑक्सीजन को 2 कर दिया है। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. तो फॉर नियॉन गैस I can write P1V1 is equals to mu1RT1, राइट? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं?
फ्रेंड्स दे आर प्लेस्ड ऑन द सेम वेसल, मतलब दोनों साथ में वेसल के अंदर है, तो फिर दोनों गैस के टेम्परेचर के बारे में क्या कह सकते हैं? दोनों साथ में ही है तो सेम सेम, एंड उसके एंड वॉल्यूम के बारे में क्या कह सकते हैं? सेम। तो वॉल्यूम भी सेम, टेम्परेचर भी सेम। तो यहाँ पे V1 एंड T1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो दोनों में सेम ही रहेगा। इज क्लियर? एंड फॉर ऑक्सीजन गैस P2V is equals to mu2 RT. Can I write this? Is it okay? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि P1 अपॉन P2 is equals to, can I say mu1 upon mu2? बट म्यू क्या होता है भैया? तो बोले n by n है, म्यू इज इक्वल्स टू n by n, राइट? तो कैन आई से mu1 upon mu2 is equals to n1 by Avogadro number n2 by Avogadro number। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा भैया? mu1 upon mu2 जो होगा ना, वो n1 upon n2 हो जाएगा भैया। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि n1 upon n2 is equals to mu1 upon mu2, but that is also equals to P1 by P1 upon P2 from equation 1 and 2. Okay friends, so that's why the ratio of the number of molecules in them will be equals to 3/2 as it is। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हमको ये भी पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? m by m नॉट रहता है। यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम नॉट, चलेगा? Yes, sir. ओके तो फ्रेंड्स इसका मतलब ऐसा हुआ कि m1 अपॉन m2 is equals to mu naught molecular mass of one gas, mu2 molecular mass of two gas। is that clear? Yes, sir. दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है भैया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, चलेगा ना? न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, चलेगा ना? Yes, sir. तो ये मास अपन वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया? Density. Density. डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2 हो जाएगा। Yes, sir. एंड इक्वेशन नंबर 1 तो ये बता रहा है कि म्यू1 अपॉन म्यू2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? P1 upon P2. P1 अपॉन P2। तो m01 अपॉन m02 एज इट इज। म्यू1 अपॉन म्यू2 के बदले हमने P1 अपॉन P2 लिख दिया, बाकी सब एज इट इज। बट P1 अपॉन P2 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया? 3/2। चलो नियोन का मोलिकुलर वेट कितना है? 3/2. तो नियोन का हमको दिया हुआ है 20.2 दिया हुआ है, एंड ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है? 32। तो कैन यू फाइंड द रेशियो? कैन यू डू इट योरसेल्फ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, चलेगा? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes. समझ में आ Yes, रहा है भैया? sir. ओके फाइन। चलो एक फिफ्थ क्वेश्चन भी है। Are you able to see the question number 5 in your mobile screen? Yes, sir.
देखो क्या लिखा है, Yes, sir. a flask contain argon and chlorine in the ratio of 2:1 by mass। मतलब मास का रेशियो हमको दिया हुआ है, दोनों गैसेस का अगर मास की जरूरत पड़े तो 2:1 दिया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 सेल्सियस। मतलब दोनों का टेम्परेचर तो मिक्सचर में सेम ही, दो ऑब्वियसली मिक्सचर है तो दोनों का टेम्परेचर सेम ही रहेगा। 27 नहीं चलेगा, इसको ऑब्वियसली कन्वर्ट करने पड़ेगा केल्विन में। So average, we wants to find the ratio of the average kinetic energy, wants to find the ratio of average kinetic energy per molecule। भैया आपको पता है कि एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इज गिवन बाय, याद है एक मोलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, बोलो बोलो। तो n kBT। NKBT। अरे यार एक मोलिक्यूल के लिए था 3/2 केबीटी था, एंड पूरे गैस के लिए था 3/2 म्यू आर टी। ओके Yes, sir. देख लो, एक बार देख लो, अगर देखना है तो देखो ये रहा। तो एक मोलिक्यूल का जो है वो क्या है भैया, देखो यहाँ पे है, क्या लिखा है देखो तो, 3/2 केबीटी है, Yes, sir. और पूरे गैस का कितना है 3/2 म्यू आर टी। ओके अंडरस्टूड फ्रेंड्स। Yes, sir. Yes, sir. चलो, so it is independent of type of gas and only depend on क्या लिखो, temperature, and as a temperature of both the gas are same, as a temperature of both the gas are same, तो फिर रेशियो क्या होगा भैया काइनेटिक एनर्जी का, दोनों का काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मोलिक्यूल ऑफ, चाहे वो आर्गन गैस हो या चाहे वो क्लोरीन गैस हो, रेशियो क्या आएगा, बोलो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगा ना, टेम्परेचर सेम है तो फिर रेशियो क्या होगा उसका, बोलो Same. सेम का मतलब रेशियो क्या रहेगा, 1. 1:1। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा क्या पूछा है इसमें, तो दूसरा ये पूछा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ द गैस। अच्छा मुझे रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना है, तो फ्रेंड्स पहले तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है भैया बोलो, तो 3 फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हमको है ना लास्ट में मोलिकुलर मास दिया हुआ है, मोलर मास मतलब मोलर मास दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे लिए, 3RT by m0। वेरी गुड, 3RT M0 बाई का root। m0 रूट में। यहाँ पे टेम्परेचर तो सबका दोनों का सेम ही है, तो फिर VRMS प्रोपोर्शनल टू मुझे क्या लिखना चाहिए, 1/m0 लिखना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो VRMS ऑफ गैस आर्गन अपॉन VRMS ऑफ गैस क्लोरीन, तो इज इक्वल्स टू रूट में, अब उल्टा हो जाएगा ना, बिकॉज क्या है भैया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास, मोलर मास। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। तो Yes, इन रूट क्लोरीन का कितना है भैया, sir. क्लोरीन का कितना है बोलो, 70.9. हाँ ऊपर क्लोरीन आएगा नीचे आर्गन आएगा, क्लोरीन का है 70.9 एंड आर्गन का है
39.9। तो उसको सिंप्लीफाई करो, यू गेट द आंसर। करोगे? ठीक है, Yes, sir. Yes, Yes. sir. समझ में आ रहा है ना भैया? Yes, sir. ओके, अब कौन सा क्वेश्चन है भैया? 6, 7, हाँ 8th क्वेश्चन है अभी। ये तीनों ही है आपके कंटेंट में, बाकी सब नहीं है, बाकी सारे इलस्ट्रेशंस कैंसिल है, 3 इलस्ट्रेशन ही है। चलो, are you able to see the question number 8 in your mobile screen? Yes, sir. ओके फ्रेंड्स, क्या लिखा है देखो, अ सिलेंडर इज फिक्स्ड कैपेसिटी 44.8 लीटर्स कंटेन हीलियम गैस। चलो 44.8 लीटर है एट एचटीपी। तो आपको पता होगा कि एट एचटीपी वॉल्यूम 22.4 liters. of 1 mole, volume of a 1 mole of gas is a 22.4 liter. Am I right friends? तो यहाँ पे हमको एसटीपी तो दिया हुआ है, बट वॉल्यूम दिया है 44.8 लीटर। तो इसका मतलब कि हाउ मच नंबर ऑफ मोल शुड बी देयर? 2 moles. Exactly. Here the volume is 44.8 liter at STP, means gas must contain how many numbers of mole? 2। 2. तो हमको पहला जो स्टेटमेंट है ना, उसके ऊपर से नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। चले, इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यहां तक समझ में आया? What is the amount of the heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder? फ्रेंड्स यहाँ पे फिक्स्ड कैपेसिटी का सिलेंडर है, तो ये फिक्स्ड कैपेसिटी का सिलेंडर का मतलब क्या हुआ? Volume constant. एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स हमको कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट एनर्जी फाइंड करना है। याद करो, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? याद आ रहा है भैया? Yes, sir. Yes, म्यू sir. सीवी डेल्टा टी, याद आ रहा है? चलो, नंबर ऑफ मोल्स तो हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमको पता है 2 मोल है। अब सीवी का वैल्यू आपको पता है F/2 इंटू आर, है आपको याद? सीपी एंड सीवी Yes, sir. यस सर। हमने प्रूव किया था 12th चैप्टर Yes. में। यहाँ पे कौन सा गैस है? तो बोले गैस जो है ना, वो तो है भैया हीलियम गैस है। तो हीलियम गैस है, मोनोएटॉमिक है हीलियम। तो क्या लिखना चाहिए भैया? डिग्रीज ऑफ F फ्रीडम is equal to 3. F इक्वल्स टू 3। F कौन is बोला? equal to 3. F इक्वल्स टू, कौन बोला? Joinil. वेरी गुड। एंड व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? हाउ मच टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज्ड? 15। 15 सेल्सियस। क्या उसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नो सर। नो, बिकॉज No. चेंज इन द टेम्परेचर इन द सेल्सियस एंड केल्विन इज द सेम। No, sir. तो ये करो, आपका आंसर जूल में आएगा। ठीक है? Yes, sir. चलो, समझ में आया भैया फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. sir. चलो, इलस्ट्रेशन 3 ही आपके कंटेंट में थे, वो सारे खत्म हुए। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्या लिखा है? Estimate the fraction of molecular volume to the actual volume of the occupied by the gas.
मोलेक्युलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि भाई मोलेक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है कि भाई एक मोलेक्यूल का वॉल्यूम जो होता है और उसको नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको पूरा गैस के मोलेक्यूल्स का ही वॉल्यूम मिलेगा। एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब क्या हुआ, जिस कंटेनर में गैस को डाला हुआ है उसी का वॉल्यूम। ये दोनों अलग चीज है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, आप थोड़ा समझो कि मोलेक्युलर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ। तो जस्ट गैस के जो मोलेक्यूल्स होते हैं उसी को ध्यान में रख के जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, मतलब एक मोलेक्यूल का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, तो वो आपका मोलेक्युलर वॉल्यूम मिल जाएगा गैस का। एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, तो भैया गैस को जिस कंटेनर में भरा भरा हुआ है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। बराबर है, ठीक है भैया। और मुझे क्या करना है, दोनों का फ्रैक्शन मतलब रेशियो निकालना है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस Yes, सर। sir. तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले मोलेक्युलर वॉल्यूम को फाइंड करने का ट्राई करेंगे। लेट द मोलेक्युलर वॉल्यूम इज अज्यूम टू बी अ वी और वी डैश, चलो ना उसको वी डैश बोल देते हैं। तो हमको डायामीटर दिया हुआ है, तो एज अ डायामीटर इज अ 3 एंगस्ट्रॉम, व्हाट शुड बी द रेडियस? 1.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, 1.5 एम्स। that's why assuming 1 mole of gas, then molecular volume v dash equals to, चलो एक का होगा 4/3 pi r क्यूब। एंड एक मोल में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, तो बोले एवोगैड्रो नंबर। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस और नो तो बोल दो। Am I audible to you friends now? यस सर। तो मैंने है ना गैस का 1 मोल अज्यूम किया, तो 1 मोल में नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कितने होते हैं, बोले एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं। और एक मोलेक्यूल का वॉल्यूम होता है 4/3 pi r क्यूब। तो 6.02 10⁻23 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.5 का क्यूब। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 का क्यूब हो जाएगा 10⁻30। तो फ्रेंड्स करो तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 6.02 डिवाइड बाई 3। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो कोई बोलेगा आंसर इसका 85 क्या रहा है? 85.168। 168 बराबर है ना, ये क्यूब किया ना हमने 1.5 का यस क्यूब। सर। ओके फाइन। एंड पावर बचेगा आपका 10⁻⁻7 बिकॉज -30 23, तो 10⁻⁻7 बचेगा। आई कैन से इट इज 8.51 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या मिला भैया, तो ये आपका मिला आपको मोलेकुलर वॉल्यूम आपको मिल गया। अब एट एसटीपी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, चलो उसको वी बोलते हैं, तो वो क्या मिलेगा 22.4 liter. 22.4 लीटर, वो हमको पता है। कैन आई से 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब दोनों का रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ मोलेकुलर वॉल्यूम एंड एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है ना, करोगे ना आप? मोलेकुलर वॉल्यूम एंड
एक्चुअल वॉल्यूम, तो V डैश अपॉन V आपको करना है, करोगे ना फ्रेंड्स? ठीक है, Yes, sir. मिल जाएगा ना? ओके फ्रेंड्स, इज इट ओके? Yes, sir. चलो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी, मोलर वॉल्यूम मोलिकुलर नहीं है भैया, मोलर वॉल्यूम है मतलब गैस का 1 मोल का वॉल्यूम। तो मुझे प्रूव करना है कि वो एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो वी कैन इजीली प्रूव इट। पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी भैया। तो कैन आई से V इज इक्वल्स टू म्यू आर टी बाई पी? कैन आई से दिस? म्यू है बोले 1 मोल, हमको सामने से दिया हुआ 1 मोल लेना है। R 8.31 होगा। टेम्परेचर जो है वो 0 सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, एंड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 10⁵. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 22.4 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा? बोलो क्या होगा 10⁻³ मीटर क्यूब का मतलब? लीटर। ठीक है, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, चलेगा ना? इज इट ओके? Yes, sir. ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन जो है ना उसमें 3-4 एसक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करना। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो एसक्यू टाइप का है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन फ्रेंड्स। ये पूरा लेक्चर अटेंड करना, कहीं पे मत जाना, बिकॉज ये न्यूमेरिकल एक आध तो आपके एग्जाम में पूछने वाले ही है, और ये इतने सिंपल न्यूमेरिकल है कि अगर आप यहां पे ही ध्यान से पढ़ोगे ना तो आराम से ये न्यूमेरिकल अभी के अभी प्रिपेयर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द फुल लेक्चर। ओके, देखो क्या लिखा है। अन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है सिलेंडर का 30 लीटर। लीटर का मतलब क्या होगा? कैन आई से इट इज अ 10⁻³ मीटर क्यूब? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब क्या है? हैज अ इनिशियल गेज प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेयर, मतलब स्टार्टिंग में जो प्रेशर है वो 15 एटमॉस्फेयर है। फिर एंड स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर है वो 27 सेल्सियस। कैन आई से इट इज अ 300 केल्विन? उसके बाद क्या है कि भाई थोड़ा बहुत गैस उसमें से विड्रॉन कर लिया है, बाहर निकाल दिया है, और उसके द्वारा प्रेशर जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर हो गया 11 एटमॉस्फेयर। अब प्रेशर 11 एटमॉस्फेयर हो गया, एंड टेम्परेचर ड्रॉप टू द 17 सेल्सियस का मतलब हुआ 290 केल्विन। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मास दैट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर, कितना मास बाहर निकाल दिया है वो फाइंड करना है। तो अगर मैं गैस के अंदर इनिशियल जो मास है वो फाइंड कर दूं सिलेंडर के अंदर, और जो बाकी बचा है वो मास फाइंड कर दूं, और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूं, तो मुझे कितना बाहर लीक हो गया वो मिल जाएगा। मान लो कि स्टार्टिंग में 15 केजी 15 केजी है और बाद में हो गया 12 केजी मान लो, तो कितना लीक होगा? पहले 15 केजी है और फिर 12 केजी अंदर बचा, तो कितना लीक? तो 3 केजी। तो आपको 3 केजी लाने के लिए आपने क्या किया? दोनों का। तो अगर मैं इनिशियल मास जो है वो फाइंड कर दूं, लास्ट में जो बचा है मास वो फाइंड कर दूं, तो दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन निकाल दूं तो क्या मुझे लीक जो हुआ है वो मिल जाएगा? ओके,
यस और नो? Yes, sir. Yes, Okay. sir. चलो हम स्टार्ट करेंगे कौन से फॉर्मूला से? ऑब्वियसली आपको पता है कौन सा फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, बोलो। कहां से स्टार्ट करेंगे? बाप से। PV is equal to nu R. PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। अब मुझे पिक्चर में मास को लाना है, तो आपको पता है भैया मास कैसे आएगा? होगा ऐसा? Yes, sir. तो फ्रेंड्स मास को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो, तो दैट विल बी अ पीवी एम नॉट अपॉन आर टी। तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली तो m1 इज इक्वल टू P1, मैं V1 नहीं लिखूंगा, क्यों? बिकॉज सिलेंडर तो वही का वही है ना। Yes, sir. एंड फाइनली क्या होगा? m2 इज इक्वल टू P2V m नॉट अपॉन T2। चलो समझ में आया फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मास ऑफ गैस दैट इज टेकन आउट, तो किसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? बोलो, कोई बताएगा मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? Subtraction. सब्ट्रैक्शन। तो m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू P1V m नॉट अपॉन RT1 माइनस P2V m नॉट RT2। तो डेल्टा m दैट इज अ मास दैट इज टेकन आउट, तो V m नॉट अपॉन R को हम कॉमन ले सकते हैं, P1 अपॉन T1 माइनस P2 अपॉन T2। चलो अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वॉल्यूम जो था वो 30 लीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻3। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन की बात है ना, ये रहा 32, मतलब 32 ग्राम पर मोल, 10⁻⁻3 किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर का वैल्यू 8.31। इनिशियल प्रेशर जो था वो 15 एटमॉस्फेयर था, 15 1.01 15 into 1.01 10⁻⁵ upon temperature 300 initially, minus 11 into 1.01 10⁻⁵। ओके, तो P1 15 1.01 10⁻⁵ upon 300 minus 11 1.01 10⁻⁵ upon 290। तो फ्रेंड्स अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है भैया। तो 30 इंटू 32 डिवाइड बाई 8.31 10⁻³ -3 -3 -6 10⁻⁵ 1.01 बाहर आएगा, 10⁻⁵ बाहर आएगा, तो मतलब 10⁻⁻1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा 15 डिवाइड बाई 300 माइनस 11 डिवाइड बाई 290। तो फ्रेंड्स अब ये करो आप, देखो क्या, देखो एक बार करते हैं। चलो कैलकुलेटर हो तो करो। 30 इंटू 32 इंटू 1.01 डिवाइड बाई 8.31, क्या रहा इसका आंसर? बताएगा कोई? 116.67. 6.67. इंटू 10⁻⁻1। मुझे ये बताओ 15 डिवाइड बाई 300 क्या आता है? 0.05. 0.05। 005 नहीं है ना? No, sir. 11 डिवाइड बाई 290 क्या आता है? 0.037. 037।
79. 9. अच्छा, चलो एक काम करो, 0.05 माइनस 0.0379 करो तो ये क्या आ रहा है? 0.0. जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको है ना 11.67 से मल्टीप्लाई कर दो। 11.67 0.1412. 1412 kg। तो इतना जो गैस है ना वो आपका लीक हो जाएगा, लीक हो जाएगा इतना गैस। देख लेते हैं क्या हमने वाकई में आंसर ला दिया है। यस, 0.1408 मतलब 141 ही हुआ। 1408 का मतलब 141 ही जैसा हुआ, तो एग्जैक्ट वही हमारा आंसर आ रहा है 0.1412। ठीक है, चलेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फ्रेंड्स। आई रिक्वेस्ट यू डोंट गो एनीवेयर। अब 15 मिनट पे खत्म हो जाएगा, लेक्चर पूरा अटेंड करके जाना। An air bubble of volume 1 centimeter cube rises from the bottom of the lake 40 meter deep at the temperature 12 Celsius। देखो इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। इनिशियल प्रेशर कितना होगा कोई बताएगा मुझे? 40 मीटर डीप में है तो डेप्थ में है, याद है एच डेप्थ का प्रेशर क्या होता है? ये प्लस एच रो जी। वेरी गुड, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10⁵ plus density of the water 10⁵, g 9.8 and 40। करो तो फ्रेंड्स 9.8 इंटू 40 करो तो क्या आ रहा है? 9.8 इंटू 40 करो क्या आ रहा है? 392. तो 3.92 10⁵, तो 3.92 प्लस 1.01 तो ये हो जाएगा आपका 4.93 10⁵ पास्कल। चलो ये इनिशियल प्रेशर मिल गया एंड इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 12 सेल्सियस है, मतलब ये हो जाएगा आपका 285 केल्विन। ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes. तो टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेस द सरफेस? तो जब वो सरफेस पे आएगा ना तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। एंड टेम्परेचर हमको दिया हुआ है सरफेस पे आएगा तो 35 सेल्सियस, मतलब क्या होगा ये? 35 प्लस 273 करो तो क्या आता है? 318 या 308 क्या आएगा? 308. क्या आएगा? 308. 308 ही आएगा ना। ओके, एंड प्रेशर कितना होगा सरफेस पे आएगा तो? सरफेस पे आएगा वो बॉटम में से तो प्रेशर कितना होगा? PA. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है फ्रेंड्स। हमको पता है कि जो बबल है ना उसके अंदर गैस का अमाउंट तो फिक्स ही रहेगा। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हमको पता है कि PV अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। और मुझे है ना V2 फाइंड करना है, तो V2 को अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू V1। तो क्या P1 P2 T1 T2 एंड V1 है? यस, V1 है, P1 है, T1 है, T2 है, P2 है। तो कैन यू फाइंड इट? यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड जस्ट मेक इट सिंप्लीफाइड। करोगे? ठीक है, Yes, sir. कराओगे चलेगा? Yes, sir. चलेगा sir. ओके फाइन। यस वही किया है। क्वेश्चन नंबर 6, estimate the total number of gas molecules in the room capacity of 25 meter cube and temperature 17 Celsius, pressure 1 atmosphere।
वी वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि मोल नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो एक स्पेशल इक्वेशन है PV is equals to n kBT, राइट? यस सर। तो क्या प्रेशर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है? यस और नो? यस सर, दिया हुआ है। क्या वॉल्यूम दिया हुआ है आपको? कैपेसिटी है सर। हाँ तो वही हुआ ना, मीटर क्यूब। हाँ वही हुआ, हाँ सर, मीटर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है आपको? 1.38 होता है 10⁻⁻23 जूल पर मोलेक्यूल केल्विन। मॉलिक्यूल। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी पता है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपको 27 मतलब 300 केल्विन। तो क्या ये करोगे आप? ठीक है, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स आपको फाइंड करना है। कर सकोगे Yes. फ्रेंड्स? चलेगा? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ऐसा है, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। एक एटम की बात है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एटम और मोलिक्यूल। तो वो तो हमको पता है भैया, क्या है बोलो? 3/2 n kBT। by 2 kBT. अरे यार एन क्यों बोलते हो, मुझे ये पता नहीं चल रहा है आपका। एक मोलिक्यूल का है तो उसमें एन कहां से आएगा? 3/2 kBT, ठीक है। Yes तो sir. फर्स्ट केस में आपको टेम्परेचर 300 केल्विन लेना है। तो 3/2 kBT में टेम्परेचर 3 kB का वैल्यू तो आपको पता ही है 1.38 10⁻⁻23। दूसरे केस में टेम्परेचर आपको लेना है 6000 केल्विन। एंड तीसरे केस में, मतलब तीनों केस में आपको जस्ट टेम्परेचर को वेरी करना है, बाकी सब सेम रहेगा। तीसरे केस में 10 मिलियन। अब 1 मिलियन जो होता है ना वो 10⁻6 होता है। तो 10 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 10 × 10⁻6 केल्विन। तो अलग अलग टेम्परेचर आपके लेना है और जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। 3/2 kBT 3/2 kBT करोगे? करोगे? Yes sir. यस सर। चलो चलो लास्ट 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम सबका, Volume sir. वॉल्यूम सबका बोलो। इक्वल कैपेसिटी का मतलब Same वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, सेम टेम्परेचर भी है एंड प्रेशर भी सेम है। तो फ्रेंड्स प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कुछ सेम है। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ये है कि इफ pressure, temperature and volume are same for different gas, then their number of molecules are also same। याद आ रहा है कुछ? Yes or no? Friends, am I V is audible to proportional you? to n. क्या बोल रहे हो? V is proportional to n. अरे भैया हमको ऐसा पता है कि अगर अलग अलग गैस है बट अगर सबका प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम रहता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सबका सेम है, तो उसका नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी सेम रहेगा। दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन क्या देखते हैं? 3 vessels of equal capacity have the gas of the same temperature. The first vessel containing monoatomic, second one is a diatomic, and third one is containing the hexafluoride. Do the vessel contain the equal number of molecules? Yes. Answer of the first question is yes, according to the Avogadro's hypothesis. According to Avogadro's Avogadro's law, Avogadro's hypothesis. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा यस आएगा।
सेकंड क्वेश्चन, VRMS क्या सबका सेम रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? √3RT बाई मोलर वेट। तो जिसका मोलर वेट सबसे कम रहेगा उसका VRMS सबसे ज्यादा। टेम्परेचर सबका सेम है तो VRMS सबका सेम नहीं रहेगा बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस। तो दूसरे का आंसर नो आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, इफ नॉट देन विच हैव द लार्जेस्ट VRMS? एज सबका लार्जेस्ट VRMS किसका होता है? हमारे पास तीन गैस है, नियोन है, दूसरा जो है वो क्लोरीन है, एंड तीसरा जो है यो यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड मतलब UF6 है। तो ऑब्वियसली सबसे कम मोलिकुलर वेट किसका होगा? M0 of neon is the least, is the smallest. So that means, so VRMS of neon is क्या होगा? Largest. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे लाइटर गैस जो होगा उसका VRMS सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया भैया? तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे तो तीनों का आंसर हमने दिया। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द होल चैप्टर एंड टुडेज लेक्चर एज वेल। एट व्हाट टेम्परेचर is the root mean square value of the atom of argon gas is equals to the RMS of the helium gas? कौन से टेम्परेचर पे आर्गन का RMS VRMS हीलियम के जितना हो जाएगा? It is given that VRMS of argon gas is equals to VRMS of helium. It is mentioned. अब आपको पता है कि VRMS का वैल्यू याद है आपको? √3RT बाई मोलर वेट ऑफ आर्गन is equals to √3RT of molar weight of what? Which gas now? Helium gas. दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, 3R को कैंसिल करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ आर्गन अपॉन मोलर वेट ऑफ आर्गन is equals to temperature of helium molar weight of the helium. तो at what temperature of argon का मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है। तो आर्गन का टेम्परेचर इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इनटू मोलर वेट ऑफ द आर्गन अपॉन मोलर वेट ऑफ द हीलियम। होगा ऐसा फ्रेंड्स? तो टेम्परेचर ऑफ द आर्गन, चलो मुझे हीलियम का टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हीलियम का टेम्परेचर? हीलियम का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? -20. -20 का मतलब क्या हुआ? 253 Kelvin. टेम्परेचर ऑफ द हीलियम -20 सेल्सियस का मतलब हुआ 253 केल्विन। यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो, आर्गन का मोलर वेट दिया हुआ है 39.9, हीलियम का दिया हुआ है 4। तो करो तो क्या आ रहा है भैया? 253 39.9 डिवाइड बाई 4 क्या आ रहा है? बोलो। 2523.675. 25 क्या? फिर से बोलो। 25 2523.675. 0.675. तो ये केल्विन में आंसर आया। -273 करोगे, -273 तो -273 करो तो क्या आएगा? 2250.675. जो भी ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर ऑफ आर्गन हो गया। इज दैट क्लियर? तो आ रहा है क्या आंसर? यस, इट इज 2524 10 अब 10 से लेके सारे न्यूमेरिकल आपके कंटेंट में अभी तो नहीं है,
तो फ्रेंड्स सारे न्यूमेरिकल आज मैंने आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर जब आपका ऑफलाइन आएगा तो ये चैप्टर पूरे का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।